Good morning, students. Today's our topic is organizing. It is fifth chapter and second function of management. Okay, so what is organizing? It is the process of bringing together physical, financial, and human resources and developing productive relationship among them for achievement of organizational goals. And according to Henry Ford, to organize a business is to provide it with everything useful or its functioning, that is raw material, tools, capitals, personals. To organize a business involves determining and providing human and non-human resources to the organizational structure. What does it mean? We have to identify and grouping all the activities in the organization, whether it is physical, financial and human resources, to establish most productive relationship for achievement of goal of the organization. यानी कि हमें ऑर्गेनाइजिंग का क्या मतलब है कि सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं और ग्रुप करते हैं अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो फिजिकल हो, फाइनेंशियल हो, चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज हो. वी हैव टू असेंबल ऑल द रिसोर्सेज, ऑल द एक्टिविटीज़ टू अचीव अवर गोल. ओके, according to Henry Ford, we have to organize business means we have to provide everything which is useful for the functioning of organization, like raw material, tools, capitals and personals. यानी कि हमें ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथ रनिंग करने के लिए रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है, टूल्स की ज़रूरत होती है, कैपिटल और पर्सनल. यानी हमें ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है, फाइनेंशियल रिसोर्स की ज़रूरत है और फिज़िकल रिसोर्स की ज़रूरत होती है. तो ऑर्गेनाइजिंग में वी हैव टू असेंबल ऑल दीज रिसोर्सेज, वेदर इट इज़ ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज, टू अचीव अवर ऑर्गेनाइजेशनल goal. Okay, so let's we take an example. Just suppose your school plans to conduct sports day or annual function day. So all the teachers and all the students are assigned different duties, and various resources are also arranged, and we have to coordinate all the activities and everyone report for the work done and pending, and this whole arrangement is also called organizing. ओके, तो अगर आपको स्कूल में कोई प्लान करना है, चाहे एनुअल फंक्शन हो चाहे स्पोर्ट्स डे हो, तो डिफरेंट टीचर्स और स्टूडेंट्स असाइन किए जाते हैं डिफरेंट ड्यूटीज़ के लिए. जैसे सपोज़ कीजिए जिसको म्यूज़िक का है इंटरेस्ट, उसको म्यूज़िक का डिपार्टमेंट दिया जाएगा. ठीक है, जिसको फूड में है उसको फूड का डिपार्टमेंट दिया जाएगा. इस तरीके से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बांट दिए जाएंगे टीचर्स में और स्टूडेंट्स में, और वो सब मिलकर काम करेंगे टू अचीव देयर गोल. Okay, now in organizing, managers create the structure of working relationship between organizational members that best allows them to work together and achieve goal. What does it mean? कि मैनेजर जो होते हैं वो एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, एक वर्किंग रिलेशनशिप या एक वर्किंग एनवायरनमेंट को डेवलप करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि जितने भी मेंबर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो अपना काम अच्छे तरीके से कर सकें और सब मिलके काम करें टू अचीव देयर गोल. मैनेजर्स विल आल्सो ग्रुप पीपल इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अकॉर्डिंग टू द टास्क परफॉर्म. So managers will also lay out the lines of authority and responsibility for members. An organization structure is the outcome of organizing, and the structure or coordinates and motivates employees so that they work together to achieve their goals. So इसका क्या मतलब है कि मैनेजर्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को क्रिएट करते हैं और अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट्स यहाँ पर असाइन की जाती हैं ड्यूटीज़. जो व्यक्ति जिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड है या उसकी जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, स्किल्स है, उसके अकॉर्डिंग उसको डिपार्टमेंटलाइजेशन किया जाता है, उसको असाइन की जाती हैं ड्यूटीज़. एंड वी हैव टू एस्टैब्लिश द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन superior and subordinates. Okay, so let's discuss about the importance or significance of organizing. Just first, benefit in specialization. तो इन ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एवरी इंडिविजुअल इज असाइंड अ पार्ट ऑफ टोटल वर्क
एंड नॉट द होल टास्क। मीन्स पर्टिकुलर इंडिविजुअल को उसका पर्टिकुलर टास्क असाइन किया जाता है, एंड ड्यू टू द डिवीजन ऑफ वर्क into smaller units, assignment of units according to the qualification which leads to specialization। यानी कि जो व्यक्ति जिस काम के लिए असाइन किया गया है उसको वही काम करना है, और इससे क्या होता है वो बार बार उस काम को करता है तो उसको ऑटोमेटिकली स्पेशलाइजेशन हो जाता है उस वर्क के लिए। ओके, और हमारा जो भी वर्क है वो दोबारा से रिपीट नहीं होता। सेकेंड है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। So organizing function में it is clearly defined that what all and how much power and authority is divided by the different individuals or managers। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में ये क्लियरली डिफाइन होता है कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल को या मैनेजर को क्या पावर दी गई हैं, क्या अथॉरिटी हैं और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, एंड ईच मैनेजर नोज वेरी क्लियर टू हुम ही कैन गिव ऑर्डर एंड फ्रॉम हुम ही हैज़ टू रिसीव द ऑर्डर। यानी कि इसमें क्लियरिटी रहती है कि आपको किस मैनेजर को किसको ऑर्डर देना है और किसके ऑर्डर उसको रिसीव करने हैं, यानी कि सुपीरियर और सबॉर्डिनेट का रिलेशनशिप यहाँ पर क्लैरिफाई होता है। थर्ड है आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इन द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन देर आर वेरी फ्यू चांसेस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क or overlapping of work because the jobs are assigned to different individuals, and by clearing defining the job description document is provided। व्हाट डज इट मीन कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है तो यहाँ पर ये देखना है कि डुप्लीकेशन ऑफ वर्क ना हो और ओवरलैपिंग ऑफ वर्क ना हो। इसके लिए ऑर्गेनाइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिफरेंट इंडिविजुअल्स को आपने डिफरेंट ड्यूटीज़ दे रखी हैं, डिफरेंट जॉब्स असाइन किए गए हैं और उसको जॉब डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट दिया गया है जिसमें सारा कुछ लिखा रहता है कि आपको कहाँ पे काम करना है, आपकी अथॉरिटी कौन है और आपको किसको रिपोर्ट करनी है, टाइम क्या है आपका जॉब का, सारा डिस्क्रिप्शन उस जॉब डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट में होता है। नेक्स्ट है हमारा एडॉप्शन टू चेंज। whenever the change take place in the business environment with the help of organizing function, these changes can be adopted systematically because organizing function creates different departments and groups related activities under each department। जस्ट वी हैव डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, सो जहाँ पर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आपने असाइन किए हैं वहाँ पर डिफरेंट फंक्शंस हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है। और अगर एनवायरनमेंट चेंज होता है तो आपको पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को ही उसके बारे में नॉलेज देनी है कि इस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में, सो आपके डिपार्टमेंट में यू हैव टू चेंज योर वर्किंग। ओके, तो आपको मॉडिफाई करना है अकॉर्डिंग टू द चेंजेस अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को। ओके, नेक्स्ट है हमारा इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। इन ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन सिमिलर एंड रिलेटेड जॉब्स आर ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट विच लेड्स टू यूनिफिकेशन एंड एफर्ट्स एंड हार्मनी इन वर्क। तो यहाँ पे आपको इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में क्या है कि सिमिलर जॉब्स और रिलेटेड जॉब्स जो हैं वो एक डिपार्टमेंट के अंदर होने चाहिए ताकि आपके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में हार्मनी रहे और डिसएग्रीमेंट ना हो। ओके, सो बाय ब्रिंगिंग क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप एडमिनिस्ट्रेशन आल्सो इम्प्रूव। नाउ वी कम टू एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। With the optimum utilization of resources, proper division of work and departmentation, companies can easily meet the challenges and can expand their activities in a planned manner। अब जब आपको पता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बन गया है, अब आपका डिफरेंट डिपार्टमेंट है, चाहे फंक्शनल स्ट्रक्चर हो चाहे डिविजनल हो। अब सपोज़ कीजिए आपका इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट है, उसमें अभी आप एसी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। अगर आप अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते हैं, एसी के साथ साथ आप फ्रिज में भी रेफ्रिजरेटर को भी मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, ठीक है, कूलर भी है, फ़ैन भी है, और भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, माइक्रोवेव है, ठीक है, इंडक्शन है, इन चीज़ों में भी आप प्रोडक्शन में भी आप आना चाहते हैं, अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो हमें यहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट्स को ही एक्सपेंड करना है। इससे और बाकी के डिपार्टमेंट्स पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, वो जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलेंगे। ओके, तो यहाँ पे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ही एक्सपेंड हो रहा है तो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को ही चेंजेस करने होंगे।
डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल का क्या मतलब है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. बाय डेलीगेटिंग द रूटीन, द मैनेजर्स कैन कंसंट्रेट to develop new methods and ways of performing job, and it gives them time to innovate new technologies and areas of growth of the companies. तो delegation authority क्या है? Organizing में we have to delegate our authority to our subordinate, and by delegating the routine the managers can concentrate to develop new methods. तो यहाँ पर अगर मैनेजर्स अपनी ड्यूटीज़ को डेलीगेट कर रहे हैं, अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट कर रहे हैं, तो उनके पास टाइम होता है नई चीज़ों को डेवलप करने का, न्यू मेथड्स को डेवलप करने का, नई नई टेक्नोलॉजीज़ को इन्वेंट करने का, ताकि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रो कर सके, एक्सपेंड कर सके. तो डेलीगेशन इज़ नॉट ओनली रिड्यूसेस द वर्कलोड of managers, but it also helps them to use and realize their full potential for more creative work. तो डेलीगेशन का मतलब ये नहीं है कि आपने मैनेजर्स के वर्कलोड को रिड्यूस कर दिया है, बट आपने उनको हेल्प किया है कि वो अपना पोटेंशियल जान सकें और वो अपना जितना भी स्किल है उसको क्रिएटिव वर्क में लगा सकें, ताकि पर्सनल्स का डेवलपमेंट भी हो. ओके, तो दीज आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ऑर्गेनाइजिंग समझ में आया होगा. जस्ट वी हैव टू ब्रिंगिंग टुगेदर ऑल द फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज टू अचीव अवर ऑर्गेनाइजेशनल गोल. ओके, एंड इन ऑर्गेनाइजिंग मैनेजर्स आल्सो क्रिएट द स्ट्रक्चर ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप and also delegate their authority for proper working and proper functioning of the organization and to achieve their target. Okay, thank you.